yes, let us proceed further from where we left in the last video. Page number 12. We are discussing this lesson, the march of mind. Page number 12, second paragraph. We are to start from here. In attention to our culture, our universities are to no small extent responsible for increasing unrest among students. Something very important point to have in the mind of students as well as guardians. In attention to our culture, that we must pay attention towards our culture, no doubt. Culture is the key. But he is suggesting what? Our universities are to no small extent responsible for increasing unrest among students. That one can say universities are not fulfilling their role in appropriate order. Universities are not fulfilling their role in appropriate order. It looks very serious. But they are the centers of education, and the future of lakhs of students depends on their attitude, their environment, their culture, their way of working. So many things are there. But if they are creating unrest among the students, then it is very, very serious. Their purpose is to develop the personality of students up to the optimum level. And why unrest is there among the students? This is the fact, mind it, notice it seriously, that so many times students used to ask us the questions which we can't answer properly because of the attitude of university. The sole responsibility of university is there to conduct their syllabus, class properly, and students must feel at confidence at home as well as at confidence that we are in safe hands. But so many times, so many types of lacunas appear before us. We are not to discuss them, but we are to discuss the things which are there in our syllabus. Increasing unrest among students, that he is saying no small extent. No small extent means up to a big level. छोटे स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर नहीं का मतलब बड़े स्तर पर. हमारे कल्चर, हमारे बैकग्राउंड, ये चीजें तो है, बट अगर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके रवैये के कारण स्टूडेंट्स में अनरेस्ट है, दिस इज नॉट प्रॉपर. In the recent weeks, the lawless activities of some students in some parts of the country filled us with shame and sorrow, and I have had occasion to refer to them and tell the students that by these acts of defiance of authority, they do a national disservice and imperil the future of the country, that they are traitors to the past and enemies of the future. Mind it. This is the way to make them understand. ये स्टूडेंट्स को समझाने का बड़ा सीधा
तरीका इन्होंने बताया है, ऐसा बहुत बार होता है। अब हम कब तक, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, ध्यान में रखना। बच्चे हैं कहकर उनको जिम्मेदारी से मुक्त करते रहेंगे, या कि इनके पीछे तो कोई और है, तो कोई और है, उसके कहने से स्टूडेंट्स इस तरीके के कार्य कब से संपादित करने लग गए? एट यूनिवर्सिटी लेवल, इवन एट योर लेवल, students of BA part 3rd should be taken as someone mature who can understand and differentiate good from bad, and he or she can think about his or her future very well. इसलिए ये कहकर नहीं बच सकते कि और किसी ने उनको कर दिया, अपने बोलते लगा दिया। अरे भाई, लगाने से कैसे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने लग गए? कब से करने लग गए? कब तक करेंगे? ऐसा बहुत बार हुआ है। राधा कृष्णन जी क्या करें, देखो रिसेंट वीक्स ये हमेशा के लिए देखो एवरग्रीन बन गया है। सेंटेंस होना नहीं चाहिए, पर हर एक सप्ताहों में, हर एक समय ही, अभी भी रिसेंट वीक्स बोलेंगे, ये पाठ पढ़ा गया था, लिखा गया था, उस समय भी यही था, आज भी यही, क्योंकि कोई वीक्स अपने निकलते ही नहीं नॉर्मल। क्या देखने को मिला? लॉलेस एक्टिविटीज ऑफ सम स्टूडेंट्स, एनार्की, अराजकता, कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना। ये यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों का काम है क्या? पर ये हमेशा होता रहता है, इसलिए रिसेंट वीक हमेशा एप्रोप्रिएट है। इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री फील्ड अस विद शेम एंड सोरो। निश्चित रूप से अगर विद्यार्थी हैं वो विध्वंसात्मक, नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो वो हमारे लिए शर्म और दुख की बात ही है, सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि विद्यार्थी इस प्रकार का एटीट्यूड कहां से लाते हैं? किस प्रकार का? बाय दीज एक्ट्स ऑफ डिफाइंस ऑफ अथॉरिटी। विद्रोह, विद्रोह की प्रवृत्ति जो भी अथॉरिटी हैं, अधिकारी हैं, उनके प्रति। अगर हमारा कहीं पे मतभेद है भी, तो हम बड़े सलीके से एक सिस्टम के तहत लिखित में देकर उसको प्रकट कर सकते हैं। पर लॉलेसनेस, अराजकता उत्पन्न करना, अराजकता का माहौल बनाना अथॉरिटीज के खिलाफ, ये किसी भी एंगल से एप्रोप्रिएट नहीं लगता। अथॉरिटीज कोई उस एंगल से आपकी बात सुनेगी ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को पता नहीं कैसे ऐसे बता देते हैं कि आप अराजकता उत्पन्न करोगे, ये करोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, ऐसा नहीं। अथॉरिटीज जो हैं वो निश्चित रूप से बड़े समझदार, मैच्योर लोग होते हैं। उनके सामने अगर कोई जायज बात रखी जाएगी सलीके से, तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। विचार होता ही है, और जो अच्छे सुधार हैं वो होते रहते हैं। मन मर्जी किसी की भी नहीं होती, मन मर्जी किसी की भी नहीं होती। जो सिस्टम है उसमें अगर बात सही है तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। आई हैव ओकेजन टू रेफर टू देम एंड टेल द स्टूडेंट्स। और मेरे को ये कह रहे व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे अवसर हुए हैं, तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से बताया है। क्या बताया? बाय दीज एक्ट्स ऑफ डिफाइन, यस, दैट दे डू ए नेशनल डिससर्विस एंड इम्पेरिल द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। वो क्या कर रहे हैं? डिससर्विस, देखिए सेवा का अपोजिट है, सर्विस है सेवा।
तो जो विध्वंसात्मक कार्य है वो सेवा का अपोजिट है। कोई रचनात्मक काम हुए, अब उन रचनात्मक कामों को आपने विध्वंस की ओर ले गए। इम्पेरिल द फ्यूचर, भविष्य को खतरे में डाल दिया। एंड दे आर ट्रेटर्स टू द पास्ट एंड एनिमीज ऑफ द फ्यूचर। वो कौन है फिर उन विद्यार्थियों के लिए? देखिए, बड़ा सीधा स्पष्ट भाषा में कह दिया है, इससे सीधा स्पष्ट भाषा में कहा नहीं जा सकता। क्या लिखा है? ट्रेटर्स टू द पास्ट एनिमीज ऑफ द फ्यूचर, कि वो जो हमारा भूतकाल निकला है उसके द्रोही हैं, विश्वासघाती हैं, क्योंकि भूतकाल ने उन पर एक अच्छा भविष्य बनाने की जिम्मेदारी रखी थी। और भविष्य के दुश्मन हैं जो लॉलेसनेस क्रिएट करते हैं, तो वो भूतकाल के तो द्रोही हैं और भविष्य के दुश्मन हैं। इसलिए ऐसे तत्वों से सदैव सजग रहना बड़ा आवश्यक है। Today I propose to point out what we should do to improve the atmosphere in our universities. आप इस लेसन में नोट कर रहे होंगे, और यही एक बड़े व्यक्तित्व की पहचान होती है कि वो पॉइंट आउट तो करेंगे, क्या नेगेटिव भी बताएंगे, पर हर एक नेगेटिविटी का सॉल्यूशन साथ में देते हैं। अभी अपने ज्यादातर क्या होता है, हम कमियां बताते रहते हैं कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, ये कमी है। कमियां होती है, नो डाउट, पर हमारा एटीट्यूड कैसा हो, उन कमियों को दूर कैसे किया जाए, उन कमियों को दूर कैसे किया जाए। साथ में हम सॉल्यूशन दें कि व्यवस्था में ये कमी है, तो इससे बेटर हम ऐसे कर सकते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा हो। ये अच्छे सकारात्मक व्यक्तित्व की पहचान हो। राधा कृष्ण साहब हमें बता रहे हैं, देखो, प्रपोज टू पॉइंट आउट व्हाट वी शुड डू टू इम्प्रूव। यही मुख्य कार्य होता है कि हमें इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें व्यवस्था में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, वही हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। टू इम्प्रूव द एटमॉस्फेयर इन द यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों के माहौल को कैसे सुधारा जाए, विश्वविद्यालयों के माहौल को कैसे सुधारा जाए कि वो देश के सर्वांगीण विकास में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके, वो अराजकता का, राजनीति का अड्डा न बने। देखिए क्या सजेशन आते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट ट्रेन्ड टू अप्रोच लाइफ प्रॉब्लम्स विद अ फॉर्टिट्यूड, सेल्फ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ बैलेंस which our new conditions demand। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है। अब ज्यादातर क्या होता है बेटा, जो क्लासेज में पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स लोग क्या करते हैं कि ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आपको क्लासेज में करवाया जाता है, ये भी बड़ा अचीवमेंट होता है। अब टीचर्स की ड्यूटी है, खास तौर से यूनिवर्सिटीज में जो हैं, उनकी ड्यूटी इससे आगे भी है। हम सभी की ड्यूटी इससे आगे है कि हम विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार भी दें, जिससे वो धैर्य और साहस के साथ आने वाली परेशानियों का सामना कर सके। कैसे? धैर्य और साहस के साथ, सहनशीलता रखते हुए उनको परिस्थितियों से जूझने के लिए हम तैयार करें।
कि सारी परिस्थितियां फेवरेबल मिलेगी ऐसा नहीं होगा, न कॉलेज में होगा न जीवन में होगा। परिस्थितियां हमें विपरीत भी मिलेगी, पक्ष की भी मिलेगी, तो हमें उन सभी में धैर्य बनाए रखते हुए अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए उनको काम में लेना है। ये भाव विद्यार्थियों में विकसित किया जाए तभी यूनिवर्सिटीज का माहौल सुधरेगा। विद्रोह करना, अराजकता उत्पन्न करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। विद आवर न्यू कंडीशन डिमांड, न्यू कंडीशन बेटा हमेशा आती रही है, आती रहेगी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में नई नई परिस्थितियां हमेशा आती है। तो नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए, धैर्य बनाए रखते हुए सामना करें। ये सिखाया जाना चाहिए या नहीं? ट्रेंड करें, प्रशिक्षित किया जाए कि आप कैसे धैर्य बनाकर रखें, कैसे अपनी योग्यताओं को विकसित करें और परिस्थितियों से जूझ कर उनका मुकाबला कर विजय प्राप्त करें। अच्छाई के लिए संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, उसके माध्यम भी बताए जाएं जिनमें सही तरीके से और सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ये बताना गुरुजनों का महत्वपूर्ण दायित्व है। Without this disciplined enthusiasm for great causes, students become a danger to themselves and to society as a whole. देखिए बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आप अंडरलाइन करें। Without this disciplined enthusiasm for great causes, क्या चाहिए जीवन में? Disciplined enthusiasm for great causes। दोनों बातें विद्यार्थियों को अक्सर क्या लगती है? विरोधाभासी, जबकि एक दूसरे की पूरक है। और ये दोनों शब्द एक साथ जहां पर प्रकट हो गए वहां सफलता निश्चित है। क्या? डिसिप्लिन्ड एंथुजियाज्म, इसको अंडरलाइन रखना, गोले में कर लेना, जैसे भी आपको याद रहे कि अनुशासित उत्साह, उत्साह सदैव चाहिए। हर कार्य को, हर अच्छे कार्य को, बड़े कार्य को करने के लिए हमें उत्साह की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उत्साह के बिना बड़े लक्ष्य पूरे नहीं हुआ करते। पर उत्साह का मतलब इनडिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन्ड एंथुजियाज्म, अनुशासित रूप से उत्साहित जो विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अनुशासित रूप से उत्साही। स्टूडेंट्स बिकम ए डेंजर टू देमसेल्व्स एंड सोसाइटी एज ए होल। अगर उनके उत्साह में डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा? उस उत्साह की दिशा है वो नेगेटिव हो जाती है और नकारात्मक चीजों की ओर हुआ उत्साह विद्यार्थियों के खुद के लिए भी खतरनाक है और पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र के लिए खतरा है। विद्यार्थियों में नकारात्मक चीजों के प्रति अगर उत्साह है तो उसको इनडिसिप्लिन्ड एंथुजियाज्म बोलेंगे, सीधी सी बात ये। और डिसिप्लिन्ड एंथुजियाज्म क्या है? कि सकारात्मक चीजों के लिए, डिस्टिंक्शन लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, देश के लिए नए नए इन्वेंशन करने के लिए अगर हम में उत्साह है तो हम देश के लिए एक एसेट बनेंगे। अदरवाइज लायबिलिटी तो होती ही है। अब हमें लायबिलिटी बनना है या एसेट बनना है, ये खुद निर्णय करना होता है कि मैं किसी के लिए उपयोगी बनूं या सरदर्द बनूं।
This approach is encouraged by a study of our classics. और ये अप्रोच, ये सहनशीलता, ये डिसिप्लिन, एंथुजियाज्म, ये कहाँ से आएगा? ये बेटा ऐसे बोल के, मैंने जैसे आपको बताया होना चाहिए, बोल के बताने से तुरंत नहीं आता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। वो बातें व्यक्तित्व में आत्मसात हो। कैसे होगी? जब हम विद्यार्थियों को हमारे जो क्लासिक्स महान ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, वो उनकी दिनचर्या का जब हिस्सा बनेंगे तो विद्यार्थी डिसिप्लिन, एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए करना क्या है मुख्य रूप से कि अच्छे सद साहित्य को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। I hope that the universities will pay greater attention to this side of education. ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज जो हमारी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, उसके इस पक्ष की ओर भी उचित ध्यान देगी। इस पक्ष की ओर कि विद्यार्थियों में डिसिप्लिन, एंथुजियाज्म आए, सहनशीलता भी हो, उत्साह भी हो, कामों को जुझारू रूप से संघर्ष कर सकारात्मक एंगल से देखकर पूरा करने की योग्यता हो। ये कह रहे हैं इस ओर यूनिवर्सिटी ध्यान देगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। तभी विद्यार्थी है वो सही दिशा की ओर बढ़ पाएंगे। I hope you are getting the point. Read all these lines once again in your book. If you have any query, you may discuss. Thank you very much for today's video.